Namaste everybody. Affirmation of the day. I respect people's confidentiality and maintain their trust in me. Remember that the most important and the costliest thing to earn in this world is trust. It takes years to earn somebody's trust, but it just takes a moment to break it. And also remember that never trust somebody who has broken your trust once, who has faltered in maintaining your trust once. What I mean to say is forgive them, but make sure that you don't trust them again with the same intensity as you have done it before, because somebody who can break your trust once can do that again and again and again. Trust when broken is like a piece of glass. How much ever you try to join it and how much ever you try to mend it, it will always leave a crack behind. Now, how to be trustworthy and who to trust? How would you know what to do when you come across a personality? To be trustworthy and to find somebody worthy of being trusting needs only one thing to be mindful about: the actions and the words. If the actions don't match the words, trust is a very expensive thing to expect from them, or even you in case if your words don't match your actions. Hence, remember to make sure to be consciously mindful of standing up to your words, keeping up to your words, and maintaining the truth of your words matching your actions. Similarly, if somebody else's words don't match your actions, they are not trustworthy. And never ever ever trust somebody who's broken your trust once. As I said, it takes years to build a trust, but just takes seconds to break it. Hence, if somebody is not trustworthy once, that person can't be trustworthy again. So remember to keep away from such people. Now, good deeds, good qualities; bad deeds, bad qualities. Each one of this comes with a price. The difference is that we get the prize of the good qualities and good deeds that we do, but we have to pay the price of the bad deeds and the bad qualities that we harbor. Hence, remember to harbor good qualities and do good deeds. Also remember to be trustworthy when people come and share your problems with you. What happens is oftentimes we find people who are just talking about other people's problems and they're sharing other people's personal details with you. Such people are not trustworthy, and don't be the one. If you're genuinely interested in listening, in giving a listening ear to the other person who's trusting you with their personal problems, who just wants to share what they feel like and what they're going through. If you're only capable of keeping it to your own self, it might be possible that you might not be able to lend a helping hand. You might not know the solution. But there are times when somebody just needs a listening ear. If you are that person who can keep things to their own selves, whether you can help or no, that's another thing. But if you can keep that secret to your own self, if you can maintain and respect that confidentiality, if you can respect and keep up to the trust that the other person has in you, only then listen to people's personal talks. Otherwise, don't. And inculcate a habit of being trustworthy. It's a very expensive gift for our own soul. Don't expect it from cheap people, and trust me, don't be that cheap one at all. Hence, learn to be respectful of the confidentiality and learn to keep up to the trust that people have in you. मैं लोगों का भरोसा कायम रखती हूँ. उनका जो मुझ में भरोसा है उसका सम्मान करते हुए मैं हमेशा उनका भरोसा कायम रखती हूँ या रखता हूँ. ये जो भरोसा जो तोहफा है ना कुदरत का, ये बहुत ही कीमती तोहफा है. इसे सस्ते लोगों से ना, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखिए. और आप इतने सस्ते अपनी आत्मा को ना बनाए कि लोग आपके ऊपर भरोसा ना कर सके. याद रखिएगा कि गुण और अवगुण हर एक की कीमत होती है. गुणों की कीमत हमें मिलती है, अच्छे कर्मों की कीमत हमें मिलती है, जबकि अवगुणों की कीमत हमें चुकानी पड़ती है. बुरे कर्मों की कीमत हमें चुकानी पड़ती है. तो ये जो भरोसे लायक ना होना एक बहुत ही बड़ा अवगुण है. इसकी कीमत देर सवेर हमें चुकानी ही पड़ेगी. बिकॉज हम भी ज़िंदगी में चाहेंगे कि हमारे कोई भी प्रियजन हो, कोई एक कम से कम निकट का व्यक्ति हो जिससे हम अपनी सुख दुख शेयर कर सकें, जिससे हम हमारी तकलीफ़ें खुशियाँ शेयर कर सकें, और तब हमें एक भरोसेमंद व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी. इसीलिए आप खुद भी भरोसेमंद बनना
शुरू कर दीजिए। लोग अगर आपके पास आके अपनी तकलीफ़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें, डिटेल्स शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, तो उसके ऊपर उनके पीछे जाके लोगों से उसके बारे में बात ना करें। ये सिर्फ आपके कर्म, बुरे कर्म में इजाफा कर रहा है और आपके अवगुण दर्शाता है। ये एक बहुत बड़ा अवगुण है, लोगों के बारे में, उनकी पर्सनल चीज़ों के बारे में बातें करना। कैसे बने किसी और के लिए भरोसेमंद और कैसे पहचाने उन लोगों को जो भरोसेमंद है, तो इसके लिए बहुत ही आसान चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि वाणी और कर्म, यानी आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं, उनमें समन्वय होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई व्यक्ति है जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो वो भरोसे लायक नहीं है। अगर आप में भी ये आदत है कि मैंने कह कुछ दिया लेकिन मैं वो कर नहीं पाया हूँ या कर नहीं पाई हूँ, तो आप भी भरोसे लायक नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और देखिए कि आपकी जो वाणी है, जो वर्ड्स है, वो आपके कर्म यानी एक्शन से मैच करती है या नहीं। इन दोनों में समन्वय जब होगा तभी आप भरोसेमंद रहेंगे, तभी आप भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढ भी पाएंगे और पहचान भी पाएंगे। भरोसेमंद होना, इसमें ना सालों लग जाते हैं, लेकिन भरोसा टूटने को एक क्षण काफ़ी है। और जो हमारा भरोसा होता है ना, ट्रस्ट, वो एक कांच की तरह होता है। कांच अगर एक बार टूट जाए ना, तो आपको उसे कितना भी जोड़ने की कोशिश कर दीजिए, वो निशान छोड़ ही जाता है। इसीलिए याद रखिए कि जहाँ तक हो सके किसी का भरोसा ना तोड़िए, अपनी ज़बान पे कायम रहिए। आपको कोई स्वार्थ से या किसी के पास से कुछ फ़ायदा उठाने के लिए बोलना कुछ और है लेकिन करना कुछ और है, बोलना कुछ और है लेकिन सोचना कुछ और ही है, और फिर कुछ और ही करना है, ये सारी चीज़ें आपके अवगुण दर्शाता है। ये उस व्यक्ति के बारे में नहीं दर्शाता जिसने आप पर भरोसा किया है। किसी का भरोसा तोड़ना ये उस व्यक्ति का अवगुण है। अवगुणों से दूर रहे। क्या रहता है ना, कोई अगर हम पे भरोसा कर ले या हम किसी पर भरोसा कर ले, तो ये गलती नहीं होती है। किसी का भरोसा तोड़ना बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होती है और उसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। यदि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपका भरोसा एक बार तोड़ा है, तो यकीन मानिए वो फिर से ये करेंगे। आप लोगों को दूसरा मौका ज़रूर दीजिए, लोगों को माफ़ भी कर दीजिए, मगर ये बात याद रखिए कि वो व्यक्ति जो आपका भरोसा एक बार तोड़ सकता है, वो फिर से तोड़ सकता है। और हम ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति नहीं बनना है जैसे व्यक्ति हम खुद के लिए नहीं चाहते। आज से याद रखिए कि किसी के बारे में उनके पीछे बोलना, उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना, ये आप बंद कर देंगे। इस अवगुण से, इस नेगेटिव क्वालिटी से, इस नकारात्मक क्वालिटी से आप दूर रहेंगे और लोगों का भरोसा जीतिए और उनके भरोसे पर कायम रहिए। ये बहुत ही सुंदर गुण है और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई ट्रस्ट एंड मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फिर भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे तुरंत ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने अपनों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।